everyone. A very good morning to all of you. This is Dr. Shal Pragya and welcome to Pragya Biology classes. Today we are going to discuss about the topic fertilization. Fertilization can be defined as the process of fusion of male and female nuclei or male or female gametes. So, as we are talking about male and female gametes or male and female nuclei, so before discussing fertilization, it would be better to discuss something about male and female gametes. We should have some information about the gametes and then how the male gamete reach to the female gamete for the process of fertilization. So, let's try to understand. The pollen grains contain the male gamete and the ovary contains the female gamete. So, let's start with the structure of male and female gametes. Pollen grains are powdery dust-like structure which are produced by the anther. Pollen grains are produced by the anther and pollen grains are present in the pollen sacs of the anthers. Each pollen grain is a single cell structure. It is a single cell structure in which one nucleus, cytoplasm is there, cell-like structure is there, which is surrounded by two layers, two membranes. The outer membrane is known as axine, whereas the inner membrane is known as intine. So, each pollen grain is a single cell structure and we have also discussed about the two layers by which it is remain covered. Now, we will discuss about axine and intine. Axine is the tough outer covering that is provided with some outgrowth, spiny outgrowth, whereas intine is the inner layer, it is the thin layer. Okay, so outer layer that is also known as axine possesses some small or fine pores, some thin pores which are known as germ pores. इन pores को क्या कहते हैं? Germ pores. These are the pores through which the pollen tube comes out while the germination occurs in the pollen grains. Intine is the inner lining and germination के दौरान यही intine ये ग्रो करके क्या बनाते हैं? जर्मिनेट करके बनाते हैं pollen tube. So pollen tube कैसे बाहर आएंगे pollen grain से? तो through the germ pore. Axine में जो छोटे छोटे spores पाए जाते हैं उससे होकर ये बाहर निकलेंगे. Now each mature pollen grain has only one nucleus. एक pollen grain के पास कितने nucleus होते हैं? सिर्फ एक nucleus होते हैं. अब the nucleus divides into two unequal nuclei after the pollen grains reaches to the proper stigma. अब proper stigma क्या है? Proper stigma means यदि pollen grains pollination के बाद जो landing होती है pollen grains की वो अगर अपने ही species के flower के stigma पर होती है then it is known as proper stigma. Okay? और ऐसी लैंडिंग होने के बाद pollen grains में further changes आते हैं. अब वो changes कैसे हैं? तो जैसे ही लैंडिंग होती है pollination के बाद तो pollen grains starts to germinate. intine बाहर आएगा pollen tube बनकर, लेकिन इसके पहले intine के pollen tube के रूप में बाहर आने के पहले ही एक और changes होती है. वो क्या है? तो pollen ग्रेन के जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड करना शुरू करते हैं और डिवाइड करके वो क्या बनाते हैं? दो अनइक्वल न्यूक्लियाई बनाते हैं. इट गिव्स टू unequal nuclei after the pollen grains reaches to the proper stigma. So the larger nucleus is known as tube nucleus. Tube nucleus is also known as vegetative nucleus. Okay. So the larger nucleus is known as tube nucleus, whereas the smaller nucleus is known as generative nucleus. Generative nucleus is also known as male nucleus. अब जब ट्यूब न्यूक्लियस
का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ट्यूब न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है? इट विल डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब बन के फिर उसे किधर जाना है, ये डायरेक्शन भी कौन बताएगा? Tube nucleus. So tube nucleus will direct the formation and movement of pollen tube. Pollen tube फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा से होते हुए वो स्टाइल के थ्रू गुजरते हुए ओवरी तक पहुंचती है, और इस दौरान जो फंक्शन होते हैं वो ट्यूब न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस उन्हें डायरेक्ट करती है, और जब पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच जाती है तो ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन यहीं पर खत्म हो जाता है और ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाते हैं, और ट्यूब न्यूक्लियस को फॉलो करती हुई जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो भी ओवरी तक आती है। लेकिन आने के दौरान रास्ते में एक और चेंज होता है, वो क्या है कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस थे उनका तो फंक्शन हमने जाना, जो जनरेटिव न्यूक्लियस थे जो फॉलो करती हुई आती है वो फर्दर डिवीजन करके दो और न्यूक्लियाई बनाती है। अब एक जनरेटिव न्यूक्लियस चेंज करके दो मेल न्यूक्लियाई बना दिए, ठीक है। तो इन दोनों जनरेटिव न्यूक्लियाई को हम लोग मेल गैमेट कहते हैं। तो इस तरह से मेल गैमेट कितने हो गए पॉलन ट्यूब में? 2, और एक ट्यूब न्यूक्लियस जो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद डीजेनरेट कर जाते हैं। अब जब ट्यूब न्यूक्लियस ने डायरेक्ट किया पॉलन ट्यूब को ओवरी तक, जो पॉलन ट्यूब है वो ओवरी तक आ चुकी है। अब वो ओवरी से अंदर जब एंटर करती है तो उसके बाद क्या होता है कि ट्यूब न्यूक्लियस अब तक डीजेनरेट हो चुके होते हैं और पॉलन ट्यूब में सिर्फ 2 न्यूक्लियाई बचते हैं। दीज आर द मेल गैमेट्स। सो आगे क्या होता है इसको जानने से पहले वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड फीमेल गैमेट। ओवरी के स्ट्रक्चर को पहले समझ लें, फिर ये समझने में आसानी होगी कि आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो क्या होता है, कैसे होता है। ओके, द ओवरी इज द लोअर स्वोलन पार्ट ऑफ द गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं, और गाइनोशियम का जो निचला स्वोलन पार्ट होता है उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। सो द ओवरी कंटेन्स 1 or 2 नहीं, मोर कह सकते हैं। सो द ओवरी कंटेन्स 1 or more ओव्यूल्स अटैच टू द वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी की वॉल से अटैच्ड एक या एक से अधिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं ओवरी में। ये जो अटैच्ड होते हैं ओवरी के वॉल से, तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा ओव्यूल में, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज हाइलम। सो ओव्यूल इज सराउंडेड बाय 2 layers। इट इज सराउंडेड बाय 2 layers। ओव्यूल के जो 2 layers होते हैं उसे हम लोगों ने कहा इंटेगमेंट्स। दैट इज कॉल्ड इंटेगमेंट्स। बट दीज इंटेगमेंट्स रिमेन वन स्पेस। एक ऐसी जगह भी होती है जहां पर कि ये इंटेगमेंट्स नहीं होते हैं। सो दीज इंटेगमेंट्स हैव अ स्मॉल ओपनिंग दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। तो यही वो माइक्रोपाइल वाला पॉइंट ही ऐसा है जहां से होकर पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर जाएगा या फिर ओव्यूल के अंदर जाएगा। सो द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस। ओव्यूल का जो मेन बॉडी होगा दैट इज नोन एज न्यूसेलस, एंड द न्यूसेलस कंटेन एन ओवल sac that is also known as embryo sac that contain embryo. Embryo sac के अंदर embryo होगा। Now we will discuss the structure of embryo sac. So the embryo sac contains 7 cells. How many cells are there in the embryo sac? 7 cells. 3 cells are present at the end opposite to the micropyle. Micropyle के ठीक अपोजिट साइड में 3 सेल्स होते हैं, और ये जो माइक्रोपाइल का जो अपोजिट वाला साइड है दैट इज नोन एज चैलेजल एंड। माइक्रोपाइल वाले एंड को तो माइक्रोपाइल एंड कहेंगे, जो अपोजिट वाला एंड है दैट इज नोन एज chalical end. So 3 cells are present at the chalical end and are known as antipodal cells. Chalical end पर जो 3 cells पाए जाएंगे that are known as antipodal cells. One cell that is known as central cell is present in the middle.
सेंट्रल सेल में के रूप में जो जाना जाता है, वहां पे एक सेल होगा जो मिडिल में पाया जाएगा, बट इट कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेल एक ही है लेकिन इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई। नाउ द अनदर 3 सेल, अब अभी तक हम लोगों ने 4 सेल्स के बारे में पढ़ा। 3 सेल्स प्रेजेंट एट द चैलेजल एंड, 1 सेल इन द सेंट्रल पार्ट एंड अनदर 3 cells are present at the micropyle end, in which the middle one cell is known as egg cell, whereas the 2 remaining cells are known as synergids. मिडिल वाले सेल को हम लोगों ने egg cell बोला और जो बच गया 2 सेल उन्हें हम लोगों ने synergids बोला। तो ये तीनों सेल जो कि माइक्रोपाइल एंड पर हैं, ये तीनों सेल मिलकर एक apparatus बनाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ओवरी के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझ लिया, पॉलन ग्रेन्स में क्या क्या चेंजेस आए वो समझ लिया था। पॉलन ग्रेन्स से पॉलन ट्यूब निकलकर ओव्यूल तक पहुंच चुका था। ओव्यूल में पहुंचने के बाद जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट हो चुके थे। नाउ वी विल स्टडी द फर्दर मैकेनिज्म, आगे क्या होता है, नाउ वी विल स्टडी दैट। सो टिल नाउ the pollen tube grows through the stigma, travels through the style and enters the ovule through micropyle. The pollen tube containing male gametes now passes through the nucellus and reaches the embryo sac. जो pollen tube होते हैं वो nucellus से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? embryo sac में। The tip of the pollen tube dissolves and the male gametes are released. अब इनमें से अभी तक पॉलन ट्यूब में बस 2 ही मेल गैमेट बचे हैं, एक तो डिजेनरेट कर जाते हैं जो ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं। अब जो 2 मेल गैमेट बचे हैं वो जब रिलीज होते हैं तो वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड फॉर्म्स द जायगोट। दिस इज कॉल्ड द ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, और इसे ही ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। अनदर मेल न्यूक्लियस एंटर्स, कहाँ वो एंटर करेंगे? सेल के एम्ब्रियो सैक के जब अंदर पहुंचते हैं तो वो वहां से होते हुए जो सेंट्रल न्यूक्लियस के पास पहुंच जाते हैं एंड फ्यूजेस विद द 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई। वो जो सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, दीज आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। सो दीज the remaining male gamete fuses with the polar nuclei and forms the endosperm. अब यही इंडोस्पर्म बाद में एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो एंड दिस टाइप ऑफ fertilization is known as triple fusion. This fertilization is known as triple fusion. Why it is known as triple fusion? Because it involves the fusion of 3 nuclei. 3 न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं? जो 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई जिसे कि पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं और एक मेल गैमेट के न्यूक्लियस। तो ये चूंकि 3 न्यूक्लियाई यहाँ पर फ्यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो अभी हमने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो प्लांट के फर्टिलाइजेशन में ये 2 टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन ऑल द एग्जाम्स इट कम्स, सो यू मस्ट प्रिपेयर। इफ fertilization in plants is in your syllabus, then you must prepare for double fertilization and triple fusion. You practice with the diagram also. Now the kind of fertilization thus involved here, because 2 fertilizations are involved here and this due to this reason it is known as double fertilization. ये double fertilization कहाँ पर हुआ? तो fusion of स्पर्म न्यूक्लियस एंड द एग सेल। सबसे पहले तो जो माइक्रोपाइल एंड पर एग न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस के फ्यूजन को कहा हम लोगों ने, एक फर्टिलाइजेशन हुआ था। जो दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ था वो स्पर्म न्यूक्लियस एंड पोलर न्यूक्लियस, एंड ड्यू टू दिस रीजन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, आई होप इट इज क्लियर। If due to some reason fertilization does not take place, the ovary withers and falls off. Ovary क्या हो जाएगा? सूख कर गिर जाएगा. So I hope you all would have enjoyed the video. You would have understood all the terms explained in this
video in this topic. So see you very soon in my next video where I will discuss respiration in plants. So अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you for watching the video.